السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امیر بادشاہ GHPUBS ملور تعلقہ بیڈگی ضلع ہاویری۔ آئیے آج ہم 5ویں جماعت کے ماحولیاتی مطالعہ کا پہلا سبق جانداروں کی دنیا عالم حیات کا حصہ اول پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ہمیں ماحول کا تحفظ کرنا ضروری ہے، یعنی ہمیں ماحول کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یہ لفظ ماحول ہمارے لیے نیا تو نہیں ہے، کیونکہ ہم ہماری روزمرہ زندگی میں اس کو بار بار سنتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں ماحول کسے کہتے ہیں؟ وہ تمام جو ہمارے اطراف پایا جاتا ہے ماحول کہلاتا ہے۔ ہم اپنے اطراف ندیاں، پہاڑ، جنگل، آبشار، چشمے، شہد کی مکھیاں، حشرات، شاہین، زمین، روشنی اور دیگر اشیاء دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا ماحول ہے۔ اب آپ تصویر کے ذریعے بھی جاننے کی کوشش کریں۔ ہلز یعنی پہاڑ، فارسٹ یعنی جنگل، ریور یعنی ندیاں، سٹریم، ہنی بی یعنی شہد کی مکھیاں، ایگل یعنی شاہین، سنیک یعنی سانپ، سوئل یعنی مٹی، برڈز یعنی پرندے، فالس یعنی آبشار اور کیڑے مکوڑے اور مختلف قسم کے جانور۔ اب آپ تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں ماحول کی تصاویر یہاں پر بتائی جا رہی ہیں اور یہاں پر ماحول میں پائے جانے والے جانور۔ اب آپ تصویر کے اندر ہمارے اطراف کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان تصاویر کو آپ دیکھ کر اپنی نوٹ بک میں بھی ماحول میں پائے جانے والے اشیاء کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے۔ آئیے اب ہم ایک کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ایک سومنا نامی ایک کاہل شخص کی ہے۔ کاہل یعنی لیزی، ہر کام میں سستی برتنے والا یہ شخص تھا۔ اس کے پاس زمین ہوتے ہوئے بھی یہ ایک بار بھی اپنے زمین کی طرف یعنی اپنی کھیت کی طرف نہیں گیا تھا۔ جو دوسرے لوگ جو کھانے دیتے تھے اس سے ہی کام چلا لیتا تھا۔ وہ مونگ پھلیوں کا بڑا شوقین تھا، یعنی مونگ پھلیاں اسے بہت پسند تھیں۔ خاص کر تلے ہوئے مونگ پھلیوں کو بہت پسند سے کھاتا تھا۔ ایک دن پھلیوں کے بیج کھاتے ہوئے اسے خیال آیا کہ وہ انہیں اپنی زمین میں بو دے گا تو کافی اچھی فصل حاصل کرے گا۔ اس نے سوچا کہ تلے ہوئے بیجوں کے بونے سے تلے ہوئے بیج ہی ملیں گے۔ دوسرے دن وہ گیا اور کھیت میں تلے ہوئے بیج بونے لگا اور پڑوسی بہت خوش ہوئے کہ آخرکار سومنا کاہلی چھوڑ کر اب کام کرنے لگا ہے۔ کچھ دن بعد کیا دیکھتا ہے کہ اطراف کے کھیت سبز و شاداب ہو گئے ہیں، یعنی اس میں سبز و شاداب پودے اگ آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اطراف کے کھیتوں میں سبز و شاداب پودے اگ گئے ہیں، لیکن سومنا کی زمین میں ایک پودا بھی نہ اگ پایا، ایک بھی مونگ پھلی حاصل نہیں ہوئی۔ آپ نے اب کہانی تو سنی ہوگی، ایسا کیوں ہوا؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ سومنا کے کھیت میں ایک بھی پودا کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ کچے بیجوں میں اگنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ کچے بیجوں میں اگنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے، اسے جاندار جزو کہتے ہیں۔ اب آپ تصویر کے اندر کچے بیج دیکھ رہے ہیں۔ تلے ہوئے بیجوں میں غذائی جز ختم ہو جاتی ہے، اس لیے یہ ایک بھی پودا نہیں اگنے دیتے۔
और ये तले हुए बीज को गैर जानदार कहा जाता है। अब आप तस्वीर में देख रहे हैं। माहौल में रहने वाली अशिया जिनमें जानदार खुसूसियात हैं जानदार कहलाती हैं। माहौल में रहने वाली अशिया जिनमें जानदार खुसूसियात हैं जानदार कहलाती हैं। आगे हम देखेंगे वो जानदार खुसूसियात कौन सी हैं। अब आप तस्वीर में देख रहे हैं जानदार की मिसालें, ट्रीज यानी दरख्त, पौधे और तितली और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और आबी जानदार। माहौल में रहने वाली अशिया जिनमें बेजान खुसूसियात हैं गैर जानदार कहलाती हैं। जिनमें बेजान खुसूसियात हैं गैर जानदार कहलाती हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, खिलौने हैं, कार है और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें तमाम के तमाम गैर जानदार की मिसालें ही। इन तमाम को अपनी नोट्स में नोट कर लें। ये तमाम के तमाम गैर जानदार की मिसालें हैं। आइए अब हम देखते हैं जानदार कहने के लिए इनमें कौन सी खुसूसियात होना ज़रूरी है। जानदार की खुसूसियात: नमो यानी ग्रोथ, ग़िज़ा खाना, हरकत करना, तनफ़ुस, इखराज छेड़छाड़ का जवाब देना, तौलीद। ये तमाम के तमाम जानदार की खुसूसियात हैं। अगर किसी भी अशिया में तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं तो हम उसे जानदार कह सकते हैं। आइए वाज़ह तौर पर जानने की कोशिश करें। नमो यानी ग्रोथ, जिसे आम ज़बान में बढ़ना भी कहा जाता है। अब आपने इस तस्वीर में देखा होगा कि बिल्ली सबसे पहले छोटी थी और बढ़ते बढ़ते वो एक हद पर पहुंच गई। इसे नमो कहते हैं। ये एक जानदार की खुसूसियत है। इसी तरीके से इंसान बचपन में बहुत छोटा होता है, बढ़ते बढ़ते एक हद पर आकर पहुंचता है। इसे नमो कहते हैं। ये जानदार की एक खासियत है। अब आप पौधों को भी देख रहे हैं। सबसे पहले छोटा था, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आया, तो इसे नमो कहते हैं। ये जानदार की खासियत है। दूसरी खासियत ग़िज़ा खाना। हर जानदार ग़िज़ा खाते हैं। जैसा कि इंसान भी ग़िज़ा का इस्तेमाल करता है तो इंसान को भी हम जानदार में शामिल कर सकते हैं। तीसरी खासियत हरकत। हरकत जानदार की एक खासियत है। ये तमाम के तमाम हरकत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जानदार हैं, जिसमें इंसान भी शामिल है। तनफ़ुस। तनफ़ुस यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का खारिज करना। आम ज़बान में सांस का लेना और सांस का छोड़ना तनफ़ुस कहलाता है। ये जानदार की खासियत है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, ये अमल इंसान में यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन को लिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज किया जा रहा है। अब आप आपकी सांसों पर भी गौर कीजिए। आप भी जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और जब खारिज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। तो ये जानदार की एक खासियत है। पौधे भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। ये भी जानदार की मिसाल है। ये भी एक जानदार की खासियत है। तनफ़ुस। इखराज। इखराज यानी खारिज करना। जिस्म के फजूल मादों को यानी बेकार चीज़ों को जिस्म से खारिज करना इखराज कहलाता है। जैसा हम बाज़ार से तरकारियाँ लाती हैं तो मुकम्मल तौर पर उन तरकारियों को हम सालन नहीं बनाते, हम उससे कुछ चीज़ों को अलहदा करते हैं। अलहदा करने के बाद उन चीज़ों को फेंक देते हैं और बाकी चीज़ों का हम सालन बनाते हैं। इस तरीके से जो गैर ज़रूरी चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर बनती हैं उनको जिस्म से बाहर डालना इखराज कहलाता है, पसीने के तौर पर और पेशाब के तौर पर। अब यहाँ पर पत्ते भी अपने
तरफ से यहाँ पर इखराज करते हैं। इसे आगे चलकर आप अपनी अगली जमातों में पढ़ेंगे। ये भी इखराज का अमल यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आप गौर कर सकते हैं इखराज का अमल पौधों में, ये एक जानदार की खासियत है। छेड़छाड़ का जवाब, जब हम किसी गर्म बर्तन को छूते हैं तो हम हमारा हाथ पीछे खींच लेते हैं, ये रद्द अमल हम जाहिर करते हैं। ये जानदार होने की एक खासियत है। अब आप किसी जानवर, मिसाल के तौर पर कुत्ता के सामने गोश्त को रख दें तो वो राल यानी लुआब को पैदा करता है अपने मुंह में, ये भी एक रद्द अमल को जाहिर करता है। ये भी एक जानदार की खासियत है। इसी तरीके से तौलीद जानदार होने की एक खासियत है। जानदार की खासियत है तौलीद, यानी जानदार अपने ही जैसी नस्ल पैदा करते हैं। मछली के जैसे ही अपने बच्चों को पैदा करती है, इसे तौलीद कहा जाता है। आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं जानदार और बच्चों के साथ। आइए अब हम यहाँ पर एक जदुल के ज़रिए मालूम करते हैं क्या जानदार हैं या गैर जानदार हैं। इसके लिए इस जदुल में चंद माहौली अज्जा दिए गए हैं और उसी के साथ साथ जानदार की खुसूसियात दी गई हैं। अगर जानदार की खुसूसियात उस माहौली अज्जा में पाए जाएं तो हम उसके सामने वही को लिखेंगे, अगर नहीं पाए जाते तो यन से ज़ाहिर करेंगे। आइए इस जदुल को हम मुकम्मल करते हैं। चूहा नमो पाता है, इसलिए हम इसे वही से ज़ाहिर करेंगे। ग़िज़ा खाता है तो वही। हरकत करता है, यस। तनफ़ुस, यस। इखराज, यस। छेड़छाड़ का जवाब, यस। तौलीद, यस। चूहा में तमाम की तमाम खासियतें पाई जाती हैं, यानी जानदार की तमाम खुसूसियतें पाई जाती हैं, तो इसे हम जानदार कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम मिसाल के तौर पर ईंट को लें तो ये नमो नहीं पाता, यानी ग्रोथ नहीं होता। ग़िज़ा नहीं खाता तो हम इसे यन से ज़ाहिर करते हैं। हरकत, यन यानी हरकत नहीं करता। तनफ़ुस भी नहीं करता, इखराज भी नहीं करता और छेड़छाड़ का जवाब भी नहीं देता, तौलीद का अमल भी नहीं करता। तो हम इन तमाम को यन से ज़ाहिर किए हैं। इसके ज़रिए हमें पता चलता है जिनके सामने वही की निशानदही की गई है ये तमाम के तमाम जानदार की मिसालें हैं, और जिनके सामने यन लिखा गया है, इन्हें यन से ज़ाहिर किया गया है, ये तमाम के तमाम गैर जानदार हैं। अब आप जदुल के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं जानदार और गैर जानदार। माहौली जुज़ यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप निशानदही करेंगे। जो जानदार हैं उनके सामने जानदार के कॉलम में वही लिखेंगे, और जो गैर जानदार हैं उनके सामने यहाँ पर वही का निशान लगाया जाएगा। आप जदुल में देख रहे हैं परिंदे जानदार हैं, इसलिए वही की निशानदही जानदार के कॉलम में की गई है, और गैर जानदार ये नहीं है परिंदा, इसलिए यन से ज़ाहिर यहाँ पर किया गया है। गुब्बारे हाँ गैर जानदार हैं, तो गैर जानदार के कॉलम में वही की निशानदही की गई है। इसी तरीके से पानी गैर जानदार है, आम का पेड़ जानदार है, गाड़ी गैर जानदार है, कलम गैर जानदार है। अब हम इन जदुलों को पढ़ने के बाद, मुताला करने के बाद, हम जानदारों की खुसूसियात जानने के बाद यहाँ इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं जिनमें जानदारों की खुसूसियात नहीं पाई जाती उन्हें गैर जानदार कह सकते हैं, उन्हें गैर जानदार कहा जाता है। अब जानदार को आम तौर पर यहाँ पर दो तरीके से पढ़ेंगे, नबातात और हैवानात। नबातात को आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये तमाम की तमाम नबातात की मिसालें हैं। इसी तरीके से हैवानात की मिसालें आप देख रहे हैं। इंसान भी हैवानात में शामिल किया जाता है। नबातात और हैवानात दोनों जानदार हैं। नबातात और हैवानात जानदार हैं। नबातात को
پلانٹس کہا جاتا ہے اور حیوانات کو اینیملس کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں لیونگ ہیں، یعنی جاندار ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نباتات اور حیوانات دونوں کو، یہ دونوں کے دونوں جاندار ہیں۔ اس کے متعلق سے اگلی کلاسوں میں ہم تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ جاندار میں خلیوں کا مطالعہ کریں گے اور تفصیل سے ان جانداروں کی خصوصیات مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ۔